Hello students, in this lecture I will discuss about very interesting topic of mathematics, that is graph of real functions, and on the basis of the shape of function I will explain about domain and range of the function, monotonicity of the function, etc. So start from the simplest one. The first function is constant function. Constant function, and this is fx equal to k. K means constant. As we all know, y is equal to fx. So this function is y equal to k. अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो y इक्वल टू के ज्योमेट्री में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सो इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन. y इक्वल टू के रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. सो सपोज दिस इज x axis and this is y axis and this point is the origin. So y equal to k represent a straight line parallel to x axis and this distance is k. This distance is k and this point lies on a y axis. So this point is 0, k. So this is the shape of the graph of function. Now I explain about the domain and range. So you all know what is the domain? The set of all possible values of x for which fx exists. Exist means fx is real. So x की जो possible values है वो domain है. So what is the domain of this function? डोमेन. ग्राफ पर आप ध्यान से देखिए कि ग्राफ एक्स एक्सिस के लेफ्ट में जाता है माइनस के इंफिनिटी तक, एरो शो करता है माइनस के इंफिनिटी तक, और इधर का एरो शो करता है प्लस के इंफिनिटी तक. इट मींस द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. इट मींस ग्राफ ऑफ So domain of this function is real number, or you can say it is real number. रेंज निकालने के लिए आप लोग इस चीज पर ध्यान दोगे कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है y इक्वल टू k. इसका मतलब है y की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है. x की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, 1 2 3 100 -1 -2, लेकिन y की जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो है k. So range of this function is a singleton set and this contains exactly one element and this element is k. So domain of this function is the real number and range is k. Range means set of all possible values of y and there is exactly one value of y, this is k. So range of this function is k. And this graph is symmetric about x y axis. It means it is shape of this graph is same on the left side of y axis and on the right side of y axis. Now I discuss the second function number 2, that is identity function. Identity function, and this function is y is equal to x, that is fx equal to x. This function is called identity function. Fx equal to x. It relates each element to itself. Y equal to x. So what is the shape of this function? Since this is a linear equation in two variables, y equal to x is a linear equation in two variables, therefore it represents a straight line. ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है
स्टेप कैसी होगी, तो हम इसे कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y intercept. So if you compare it with y equal to mx plus c, so you can write it as y is equal to 1 into x plus 0. It means slope of this function is 1, slope of this straight line is 1 and y intercept is 0. So slope is 1 means m is equal to 1. So what is m? You all know m equal to tan theta. So tan theta is equal to 1, or you can say tan theta is equal to tan 45 degree, or you can say theta equal to 45 degree. It means this straight line makes an angle 45 degree with x axis and c is 0. c is 0 का मतलब y intercept 0 है, और अगर कभी भी y intercept 0 होता है, it means the straight line passes through origin. अगर किसी भी ग्राफ में फंक्शन में वो लीनियर है x और y में, वहां कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास होगी. सो द शेप ऑफ दिस फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद x axis. Now what is the domain of this function? Domain means set of all possible values of x. अब ध्यान से देखो तो ये ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में भी है और y एक्सिस के राइट में भी है. इट मींस x की सारी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है और x की सभी पॉजिटिव वैल्यू भी यहाँ पर पॉसिबल है. सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. If you consider the range, that is the all possible values of y. आप ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है ऊपर भी है x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब है y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, और ये x एक्सिस के नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब ये है कि y की सभी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं. नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल हैं, तो यू कैन से so range of this function is from minus infinity to infinity. So domain of this function is the real number and range of this function is also real number. And this is an increasing function. Increasing function means as the value of x increases, the value of fx, that is y, increases. x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ अगर y की वैल्यू बढ़ती है तो ऐसे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहे जाते हैं. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है, x बढ़ने के साथ साथ y बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन. नाउ आई डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज मॉडुलस फंक्शन, एंड यू कैन से it is defined as fx equal to mod x or y is equal to mod x. So what is the definition of mod x? It is defined as fx equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0. fx की वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव है, और fx की वैल्यू माइनस x होती है अगर x नेगेटिव है. बहुत सिंपल है. x if x is positive, minus x when x is negative. So what is the shape of this function? You can say y is equal to x when x is greater than or equal to 0, or y equal to minus x when x is less than 0. Y equal to x represent a straight line passing through origin and making an angle 45 degree with x axis. So this is the origin and coordinate is 0 0 and this is x axis and it is y axis. So y equal to x.
is a straight line passing through origin making an angle 45 degree with x-axis. But this definition is valid only when x is greater than or equal to 0. ये जो definition है वो तब valid है जब x पॉजिटिव है, greater than equal to 0 means पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है उसको हटा दिया जाएगा यहां से, and y equal to x when x is greater than or equal to 0. Now what is the shape of y equal to minus x? Y is equal to minus x if you compare it with y is equal to mx plus c. So y is equal to minus 1x plus 0. Since y intercept is 0, so this line also passes through origin and slope is minus 1, that is m is minus 1, tan theta is minus 1, or you can say tan theta is equal to tan 135 degree. So theta is equal to 135 degree. It means this straight line y equal to minus x passes through origin and makes an angle 135 degree with x axis. And this definition is valid only when x is negative. तो मैंने स्ट्रेट लाइन को सिर्फ x लेस देन 0 जब x नेगेटिव है सिर्फ तब के लिए बनाया है, x इज लेस देन 0। लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है और राइट साइड में x पॉजिटिव होता है। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल 135 डिग्री विद x एक्सिस। So this is the line y equal to x and this is the straight line y equal to minus x. This is valid when x positive and this is valid when x negative, y equal to minus x. So this is the shape of modulus function. So what is the domain and range? Domain and range of this function. So first of all we discuss about the domain. इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में भी है, इसका मतलब है कि x की सभी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी है, इसका मतलब है x की सभी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल है। तो डोमेन जो होगा वो होगा इसका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और यू कैन से कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। अगर हम रेंज की बात करें, इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो ये फंक्शन x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो y की वैल्यू होंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी, ग्राफ नीचे नहीं है, x एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो रेंज है इस फंक्शन की वो होगी 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। Range of this function is from 0 to infinity, 0 पर क्लोज इंटरवल, इंफिनिटी पर ओपन। क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है कि मॉड x की वैल्यू x हो सकती है, ये कब होगी जब x 0 होगा। ये एक, अगर हम यहां पर ध्यान दें, जब राइट साइड में चलते हैं तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस इज द डोमेन of this function and this is the range of this function, and this graph is symmetric about y axis. Now I discuss some more points on the modulus function, and it is defined as x when x is positive minus x when x is negative. Suppose you want to find the value of mod 5. What is the value of mod 5? तो according to definition अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, तो मॉड x की जो वैल्यू है वो x के बराबर हो जाएगी। इट मींस योर आंसर इज 5। एंड सपोज यू वांट टू फाइंड व्हाट इज मॉड -7। अब यहाँ पर जो x है वो नेगेटिव है x। तो जब x नेगेटिव है तो फिर मॉड माइनस साइन लगा के खुलेगा, माइनस साइन लगा के, तो माइनस ऑफ -7 एंड योर आंसर इज 7। तो आप लोग
ने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन कैसे होता है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है अगर, तो मॉड सीधे सीधे खुल जाता है, और अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है तो फिर मॉड माइनस साइन लगा के खुलता है, जो इस डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। तो मॉड ऑफ -7 की वैल्यू माइनस ऑफ -7 होगी, इसका मतलब 7 होगी। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ए, आप लोग कहोगे कि मॉड ए की वैल्यू ए होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मॉड ए की वैल्यू ए होने का मतलब है आपने ये मान लिया कि ए पॉजिटिव है, जबकि मैंने आपको ए के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो आप लोग मॉड ए के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, मॉड ए की जो वैल्यू होगी वो मॉड ए ही होगी। आप तब तक मॉड को नहीं खोल सकते जब तक आपको ये पता न चल जाए कि ए कैसा है, आइदर ए इज पॉजिटिव और ए इज नेगेटिव। तो मॉड ए की वैल्यू ए हो जाएगी अगर ए तुम्हारा पॉजिटिव है, और यही मॉड ए की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी अगर ए नेगेटिव। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए कि √x², आप छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हो तो आपके दिमाग में ये बैठा है कि √x² की वैल्यू x होगी, जैसे x² और अंडर का मतलब है 1/2 पावर, नाउ दिस इज x। लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बताता हूँ कि √x² की वैल्यू x नहीं होती है। √x² की वैल्यू x तभी होती है जब x पॉजिटिव होता है। जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो है √x² इज इक्वल टू mod x। So this is wrong and this is right. Suppose अगर आप ये मान के चलो कि ये ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि √4 का स्क्वायर क्या होगा, तब आप कहोगे 4 अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि √ में -4 का स्क्वायर क्या होगा, आप यहां पर ध्यान दो, आपके हिसाब से √x² का मतलब x, इसका मतलब है √-4 का जो स्क्वायर है इसका मतलब -4 होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू -4 बिकॉज √-4 स्क्वायर मीन्स √-4 into -4 दिस इज 16 एंड √16 इज 4। किसी भी चीज का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम कहेंगे √ में -4 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, √-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड में -4। क्योंकि मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है तो फिर मॉड माइनस साइन लगा के खुल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा -4 दैट इज 4, राइट। सपोज यहां पर एक क्वेश्चन हमने दिया आपको, √ में sin x माइनस cos x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी जबकि x लाई करता है 0 से π/2 के बीच। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस, so you can write it as mod sin x minus cos x। अब मॉड बोलने के लिए आपको ये पता करना होगा कि ये चीज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आप ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि जो ग्राफ होता है sin x का और cos x का, ये जो ग्राफ है वो sin x का है और ये जो ग्राफ है इस तरीके का वो cos x का है। यहां पर जो पॉइंट है दिस इज π/2 एंड दिस इज π/4। इसका मतलब ये है कि 0 से π/4 तक cos बड़ा होता है, ये ग्राफ cos का है, इसका मतलब cos की वैल्यू ज्यादा होगी। और π/4 से π/2 की बात करें, π/4 से π/2 तो साइन ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू, साइन छोटा है cos बड़ा है, 0 से π/4 की बात चलेगी माइनस sin x माइनस cos x, अगर x आपका लाई करता है 0 से π/4 के बीच। क्योंकि 0 से π/4 के बीच में साइन छोटा है cos बड़ा है, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, मोड माइनस साइन लग के खुल गया और आपका आंसर आया cos x माइनस sin x। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप π/4 से π/2 की बात करें तो π/4 से π/2 में साइन बड़ा है cos छोटा है, यहां से आप देखिए, तो इसका मतलब है साइन बड़ा है cos छोटा है, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और मॉड सीधे सीधे खुल गया। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर कॉस लाई करता है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक। नाउ आई एक्सप्लेन मोर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 एंड यू कैन से y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। सो व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट? बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने के लिए आप मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको जीरो कर दो एंड यू कैन से x माइनस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू 3। तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो 3 है। तो ग्राफ जो है मॉड x का जैसे आपने बनाया ठीक वही से इसकी भी होगी मॉड x जैसी, लेकिन इसकी जो बाउंड्री पॉइंट है वो 3 है। इट मीन्स दिस पॉइंट इज 3, 0। यहाँ पर एक लाइन बनेगी इस तरीके से और जो दूसरी लाइन होगी वो इस तरीके से, बिल्कुल सेम वही ग्राफ है। दिस लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल 135 डिग्री। लेकिन ये लाइन है क्या? अगर हम मॉड को खोलें तो मॉड खोलने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि x कैसा है। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा है तो ये जो नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा। तो यू कैन से y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो जो ये लाइन है वो है आपकी y इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर हम ये कहें कि x इज लेस देन 3, इफ x इज लेस देन 3 इट मींस दिस थिंग इज नेगेटिव, दिस थिंग इज नेगेटिव, और जब नेगेटिव होगा तो मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा। तो y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 और यू कैन से y इक्वल टू 3 माइनस x। So this line is y is equal to minus x plus 3, but the shape is same as mod x. Now I discuss, suppose अगर ये यहाँ पर mod x minus 3 की बजाय ये होता आपका y is equal to mod x plus 1। अगर ये mod x plus 1 होता तो हम x plus 1 को 0 कर देते और x की वैल्यू आ जाती -1। तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो -1 हो जाता और शेप बिल्कुल यही रहती, एक लाइन यहाँ पर 45 डिग्री पर और दूसरी लाइन 135 डिग्री पर। अब हम इस ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 प्लस 2। अगर आप इसका बाउंड्री पॉइंट फाइंड करो तो यू कैन से x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू -2। सो दिस पॉइंट इज -2, 0। लेकिन यहाँ पर है y इक्वल टू मॉड में x प्लस 2 प्लस 2, इसका मतलब है y की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। तो y इक्वल टू 2 के बारे में आप जानते हैं, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। This point is shape is same as mod x, but lines are different, and this point is -2, 2। अगर हम कहें कि जो x की वैल्यू है वो बड़ी है -2 से, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी और मॉड सीधे सीधे खुल जाएगा और आपका ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 2, दैट इज x प्लस 4 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 4। इफ x इज लेस देन -2, अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है तो मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 2 plus 2 and now these two are cancelled and this line is y equal to -x. Now I discuss about the graph of y is equal to minus mod x. So according to definition y is equal to minus x when x is greater than equal to 0। अगर x पॉजिटिव है मॉड खुल गया सीधा सीधा -x आ गया एंड when x नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन लग के खुलेगा, एक माइनस पहले से चल रहा है, सो दिस इज इक्वल टू x। तो जो इसकी शेप है
वो एंटायरली डिफरेंट होगी मॉड x से. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन, दैट इज 0 0 0 0. y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x पॉजिटिव. माइनस एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास होती है, 135 डिग्री का एंगल बनाती है. ये स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, लेकिन डेफिनेशन बैंड है x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसलिए मैंने ये पोर्शन मिटा दिया है. और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू x. सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस x. y equal to minus x when x positive, y equal to x when x is negative. So this is the shape of fx is equal to minus mod x.